Hello, my dear children. In this video, we are going to revise electrochemistry. Electrochemistry बहुत ही ज़्यादा बेटा important है. Now, क्यों ज़्यादा important है? क्योंकि एक तो बहुत application based chapter है. एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे बेटा तो इस चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा है, दैट इज अप्रॉक्स 8 to 9 मार्क्स. 8 to 9 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से मिलने वाले हैं. सो अगेन आई विल से कि इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, बिकॉज 8 to 9 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे. ओके, सो इन दिस वीडियो आई हैव सेट्स ऑफ 25 MCQs. So variety of questions are there. So we'll try to clear the concepts of based on all the topics. Now we'll move to the next slide. Here the first slide and the first question is, as temperature increases electrolytic conductance. Okay, this is understanding based question. And what is the relationship between temperature and conductance? Okay, now see, temperature is directly proportional to electrolytic conductance. Why this is directly proportional? Because when you will increase the temperature, it will improve, it will fasten the movement of the electrons. So conductivity, electrical conductivity will also get increased. So that is directly proportional. Okay, so the option A will be the right answer. Question number 2, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर रिलेटेड टू. बेटा फेराडे के दोनों लॉ आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ. ओके, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर रिलेटेड टू, दैट इज रिलेटेड टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. उनको स्पीड ऑफ द कैटायन, एटॉमिक नंबर ऑफ द कैटायन, एटॉमिक नंबर ऑफ एनायन से कोई लेना देना नहीं है. ओके, सो here I have given the answer and I have given the second law also. See, I will just write down what will be the Faraday's first law. Okay, Faraday's first law says that the amount of substance deposited on each electrode is directly proportional to the amount of electricity passed. जितना आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना ही अमाउंट, उतना ही सब्सटेंस आपका डिपॉजिट हो जाएगा. ओके, सेकेंड लॉ क्या है बेटा? इफ द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, द masses of ions deposited at the electrodes are directly proportional to their chemical equivalent. So this one is the second law. Okay, now move to the next slide. Question number 3. On electrolysis of dilute H2SO4 sulfuric acid using platinum electrodes, the product obtained at the anode will be. See, what is the electrolyte here? Electrolyte is H2SO4 aqueous solution. Okay, so we have H2. When you will dissociate H2SO4, you have H plus ions and SO4 2 minus ions, and we have taken aqueous solution of sulfuric acid. So when you will dissociate it, you will get H plus ion and OH minus ion. Okay, now see, opposite ions will get attracted to opposite electrodes. What happens at anode? Anode पे बेटा क्या होता है? Anode पर होता है oxidation. Oxidation means beta what? Loss of electron. Okay, and cathode पर क्या होता है बेटा? Cathode पर होता है आपका reduction. Reduction means बेटा gain of electron. ठीक है, ये concept हमने 11th में भी कई बार किया हुआ है. ठीक है, now anode पे फिर कौन जाएगा? Oxidation होना है, loss of electrons, so anions will move towards anode and cations will move towards कैथोड. ओके, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे एनोड पे कौन जाएगा और कैथोड पे कौन जाएगा. नाउ सी, कैथोड पे अगर आप देखो तो दो कैटायंस है बट दोनों सेम है, तो नो प्रॉब्लम, H प्लस आयन आपका मूव करेगा. ठीक है, यहाँ पे H प्लस आयन आपका मूव करके यहाँ पे 2H प्लस ले लेंगे, तो इफ इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इट विल बिकम H2 गैस जो कि रिलीज हो जाएगी.
फॉर अनायंस, यस, फॉर अनायंस यू विल हैव टू थिंक कि कौन जाएगा, इसीलिए आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, बिकॉज देयर आर टू अनायंस, ओके। अगर SO4 बेटा मूव करेगा तो क्या मिलेगा आपको, SO2 गैस मिलेगी। अगर OH माइनस मूव करेगा तो आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ठीक है। नाउ विच वन विल गो। अब यहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 1.23 वोल्ट। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है that will migrate towards anode and it will get you know uh, it will get oxidized and whichever gas will get released, it will come out, okay. So at anode OH minus will migrate, okay, and by losing electron it will become O2 gas, okay. So this particular concept is very important. The one, see, if you have two cations, you have two anions, based on this concept you may get question in board exam also, because then there will be, you know, concept of their electrode potential, okay. Okay, now move to the next question. Which of the following statement about solutions of electrolytes is not correct? Not correct. मतलब तीन यहाँ पे correct होंगे, एक correct नहीं होगा. Okay, so the conductivity of solution depends upon size of ions. Conductivity depends upon viscosity. Size पर depend करती है, viscosity पे depend करती है. Conductivity does not depend upon solvation of ions. इस पर भी डिपेंड करती है, बट इन्होंने लिखा है डज नॉट, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, बिकॉज ये स्टेटमेंट आपका इट डज डिपेंड अपॉन सॉल्वेशन ऑफ आयंस, तो इसलिए ये नॉट करेक्ट है क्योंकि इन्होंने डज नॉट लिख दिया है. फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं. कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट स्लाइड. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. आंसर्स आर देयर इन दिस स्लाइड. Question number 5. Molar conductivity of ionic solution depends upon. ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? मोलर कंडक्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. यस, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स नहीं, इस पर डिपेंड नहीं करती है. बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन सोल्यूशन, इस पर भी डिपेंड करती है. तो एक्चुअली यहाँ पे दो ऑप्शन आपके करेक्ट बन रहे हैं. सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, अगेन यही बात हो गई, तो इस पर भी डिपेंड नहीं करती है. सो द राइट आंसर आपके बेटा यहाँ दो ऑप्शन सही बन रहे हैं, दैट इज ए एंड सी. ये भी आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है. देन आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन. कोलराश लॉ इज एप्लीकेबल. कोलराश लॉ हम कब यूज किए थे? कोलराश लॉ हमारा जब हमने बोला था हम सॉल्यूशन को इतना डाइल्यूट कर दें कि आयंस आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. और वहां पे बेटा क्या बोलता है कोलराश लॉ, कि वहां पे जो कंडक्टिविटी होगी वो इनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होगा. ठीक है, हर आयंस के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन से हमारी कंडक्टिविटी निकाली जाएगी. ठीक है. नाउ तो ये किस केस में बात करते हैं बेटा? जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करते हैं. सो द ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. जी देखिए यहाँ पे ए एंड सी दो ऑप्शन आपके सही बन रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. During the electrolysis of molten sodium chloride, the time required to produce molten, यानी यहाँ पे आपका सिर्फ NaCl है, time required to produce 0.1 mole of chlorine gas, Cl2 gas को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा, और इन्होंने करंट लिया है. सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी हैव फॉर्मूला, हम ले लेंगे यहाँ पे W इज इक्वल टू हमारा ZIT, तो हम ये लिख सकते हैं E इंटू IT, ठीक है, अपॉन आपका हो जाएगा 96500. ठीक है. सो इफ यू विल कीप एवरीथिंग द वैल्यूज in the formula you will get the answer. like W क्या हो जाएगा बेटा आपका? मोल इंटू मॉलिकुलर मास. मॉलिकुलर मास किसका बेटा? आपको क्लोरीन गैस का निकालना है. सो दैट इज 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो इट विल बिकम 71 इज इक्वल टू 35.5, that is the weight, and then into
I आपका दिया हुआ 3 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई T आपको निकालना है and that is 1 Farad, that is 96500. When you will calculate it you will get 110 minute. Exactly आपको 107.2 मिलता है but उसके नियर बाय हमारा ये आंसर है, so the answer will be 110 minute. Question number 8. Conductivity of an electrolytic solution does not depend upon. इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कंडक्टिविटी किसके ऊपर, अभी ये हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, सो दिस वन विल बी द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Write the next equation of the following galvanic cell whose cell reaction is given. ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है. नस्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, तो आपको नस्ट इक्वेशन लिखना है. नस्ट इक्वेशन हम किसके लिए यूज करते हैं? नस्ट इक्वेशन एक्चुअली हमारा when we have not taken the parameters in their standard form and जब हमें सिर्फ वन मोलैरिटी के लिए कैलकुलेट नहीं करना है कंडक्टिविटी, जब हम कोई भी मोलैरिटी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन का अगर हम कंडक्टिविटी निकालना चाहें तो हम नर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं. ओके, सो क्या करते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल जो कि हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है माइनस 0.059 अपॉन n log ऑक्सीडेशन अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन. ठीक है, आप इसको और भी तरीके से, बहुत तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, सो नाउ विल सी ई नॉट सेल आपका एज इट इज, क्योंकि फॉर्मूला में ई नॉट को हटाया नहीं है, सो दैट विल बी ई नॉट ओनली माइनस 0.059. n हमें कैलकुलेट करना है, तो हम देख लेते हैं. n कैलकुलेट करेंगे तो n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व. तो इफ यू विल सी यहाँ पे आपके एक कैडमियम पे 2 चार्ज है, तो 3 कैडमियम पे आपका ये 6, तो यानी यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 लॉग ऑक्सीडेशन. बेटा किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है आपके Cr का. ठीक है, और रिडक्शन किसका हो रहा है? Cd का, कैडमियम का. ओके, सो ऑक्सीडेशन हमारा ऊपर जाएगा, रिडक्शन हमारा नीचे आएगा. सो यू विल राइट Cr 3 प्लस की पावर 2 अपॉन रिडक्शन में क्या है? Cd 2 प्लस की पावर 3. Okay, so this will be option number C will be the right answer. Question number 8. The molar conductivity of a strong electrolyte. Okay, molar conductivity of a strong electrolyte, it means remains constant. They have asked the question based on the graph. तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? वेरीज लीनियरली विथ कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर. Actually there are one more option. Okay, they was related with the molar conductivity of a strong electrolyte. Okay, this is based on conductivity only. What will happen when you talking about the strong electrolyte? Okay, so when you will dilute it, अगर आप strong electrolyte को बेटा dilute करते हो, strong electrolyte को, ठीक है, dilute करते हो, तो what will happen? See, अगर आपने suppose you have taken KCl आपका strong है, so ये already आपके ions में dissociated है, 100% ions में dissociated है. तो अगर आप इनको dilute करते हो तो dilute करने में ज़्यादा changes नहीं आएंगे, so it increases slightly with dilution. Then move to the question number 9. The cell constant the cell constant of a conductivity cell changes with change in temperature of the electrolytic solution, changes with change in concentration of the electrolytic solution, changes if a different electrolytic solution is taken, is constant for a given cell. ठीक है,
तो सेल कांस्टेंट तो हमारा किसी भी सेल के लिए अगर आप बात करोगे तो अगर आप उसका L बाई एरिया निकलते तो वो तो उसके लिए आपका चेंज सेम ही हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, electrolysis of NaCl solution gives chlorine gas at the anode and not oxygen. See, NaCl solution एक्वा solution लिया है, so you have Na plus ion and Cl minus ion, H plus ion and OH minus ion, ठीक है। so they are saying कि एनोड पर it means एनोड पर ये होगा रिएक्शन, एनोड पर we are getting क्लोराइड आयन नॉट ऑक्सीजन, ठीक है। हमको क्लोराइड आयन मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता, बिकॉज एनोड पे हमारे दोनों आयन्स माइग्रेट करेंगे, राइट। क्लोरीन भी माइग्रेट करेगा एंड OH माइनस भी माइग्रेट करेगा, बट व्हाई डोंट वी गेट ऑक्सीजन गैस, ओके, व्हाई डोंट वी गेट ऑक्सीजन बट वी गेट क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर बेटा आपको एक कंसेप्ट काम करता है, दैट इज द ओवर वोल्टेज ऑक्सीजन गैस के लिए लार्ज अमाउंट में ओवर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, विच इज मच मोर लार्जर देन क्लोरीन, इसलिए क्लोरीन आपका इजिली एनोड पर आ जाता है और ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13, which of the following statement is not true about inert electrode? इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब जैसे कि प्लैटिनम, पैलेडियम, तो ये हम क्यों लेते हैं बेटा? इनर्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि इनका दे शुड नॉट बी रिएक्टिव, ठीक है, डू नॉट रिएक्ट, अगर ये भी रिएक्ट कर जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। सो विल सी, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन, इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर ईदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, it provides surface for conduction of electrons, it provides surface for redox reaction, ठीक है। तो ये redox reaction के लिए आपका surface area provide करता है। While applying Nernst equation, electrode potential always taken as, तो बेटा ये तो IUPAC convention से हमने already फिक्स किया हुआ है। According to IUPAC convention, the electrode whenever we are talking about the electrode potential, it means we are referring only and only reduction potential. Okay, this is application based question and this is understanding. Question number 13 is the application based question and question number 14 is the understanding based question. Move to the question number 15. The quantity of charge required to obtain 1 mole of aluminium from Al2O3, ठीक है, Al2O3। तो if you want to prepare aluminium from Al2O3, तो पहले तो आप बैलेंस रिएक्शन देख लो यहाँ पे, ठीक है। If you will prepare aluminium from this compound Al2O3, 1 mole, okay, so what you are going to get? 2 aluminium, right? From this reaction, if you balance it, you are going to get 2 moles of aluminium. So we'll see कि अगर हमको and see quantity of charge required to obtain 1 mole of aluminium. तो अगर ये एक Al की अगर आप बात करो बेटा, एक Al की बात करो तो एक Al पे कितना चार्ज होता है? 3 प्लस चार्ज होता है, ठीक है। एंड इफ वी आर गेटिंग 2 Al फ्रॉम द रिएक्शन, इसका मतलब कितने चार्ज हो गए हमारे पास? 2Al के लिए चार्ज हो गए, टोटल 6 फेराडे हो गया हमारा, ठीक है। तो अगर हमारा 6 फेराडे, ठीक है, 2 मोल के लिए लग रहा है, क्योंकि अगर आप बैलेंस रिएक्शन देखो तो 2 मोल के लिए कितना लग रहा है बेटा? 6 फेराडे लग रहा है, तो 1 मोल ही अगर हम बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? जस्ट हाफ, इट विल बी 3 फेराडे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बच्चे थोड़ी सी गलती कर देते हैं और अच्छा खासा क्वेश्चन हाथ से निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following statement is correct regarding variation of molar conductivity with concentration? See, conductivity और molar conductivity दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, इसलिए यहाँ से बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलने हैं कि कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन बढ़ाने पे क्या होगा एंड मोलर कंडक्टिविटी का क्या होगा। मोलर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। नाउ
16. Molar conductivity decreases with decrease in concentration. Variation in molar conductivity of weak and strong electrolyte is same. When molar conductivity increases with decrease in concentration. When concentration of the solution approaches zero, the molar conductivity is known as IVS limiting molar conductivity. Okay. So which statement is correct? मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन. अगर आपने कंसंट्रेशन को कम किया है तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डाइल्यूट करने पे. मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन. तो आपके इन दोनों में से एक आंसर सही हो जाना चाहिए. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. इफ अ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड between the half cells, the voltage. See, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? आपके इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है. ठीक है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा धीरे धीरे करके, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा आपके, वो जो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो रहे हैं आपके, या एक्स्ट्रा हम बोल सकते हैं अनायंस या कैटायंस जो आपके रिलीज हो रहे हैं, उन्हीं को ये न्यूट्रल कर देता है. ठीक है, उनको ही न्यूट्रल कर देता है. तो अगर इनको हम रिमूव कर देते हैं तो वोल्टेज पे क्या असर होगा? तो वोल्टेज आपका आई गेस विल सी कि क्या होना चाहिए. ड्रॉप्स टू जीरो, डज नॉट चेंज. देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में व्हाट विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये चेंजेस तो बहुत वोल्टेज में नहीं आने चाहिए. ठीक है, विल सी. क्वेश्चन नंबर 20. Zinc cannot displace following ions from their aqueous solution. Zinc, see, displacement reaction आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो. Displacement reaction क्या होता है? The one which is very reactive will displace others who they are less in the reactivity series, less reactive in the reactivity series. तो अगर आप अपने मेटल्स की बात करो, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये तो इनको तो ये नहीं कर सकता है. ठीक है, इनको आप ये नहीं निकाल सकता. वाई? बिकॉज ये इजिली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और ये इनसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. बट अगर आप बात करो कॉपर की, आयरन की, ठीक है, एंड देन सिल्वर की, गोल्ड की, इनकी अगर आप बात करोगे तो ये इनको इजिली डिस्प्लेस कर सकता है. तो यहाँ पे किसको नहीं कर सकता है? CuFeAg कर सकता है, नहीं कर सकता है कैन नॉट डिस्प्लेस, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम इसके रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक के ऊपर है. सो एल्यूमिनियम कैन रिप्लेस बट जिंक कैन नॉट रिप्लेस और डिस्प्लेस. ओके ओके. सो हाँ, यहाँ पे जो आंसर निकलेगा आपका कि बेटा द सॉल्ट, अगर हमने सॉल्ट ब्रिज हटा लिया है हाफ सेल के बीच में से, तो वोल्टेज आपका 0 हो जाएगा. अगेन आंसर यहाँ पे ये नॉलेज बेस्ड आंसर है, ये आपका पता है कि क्या हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने सॉल्ट ब्रिज हटाया तो सॉल्ट ब्रिज हटाने की वजह से जो आपका इंटरनल सर्किट कंप्लीट हो रहा था वो तुरंत क्या हो गया? डिसबैलेंस हो गया. ठीक है, डिसबैलेंस हो गया. डिसबैलेंस होने की वजह से जो आयंस हैं वो आपके इलेक्ट्रोड्स पे माइग्रेट नहीं करेंगे, तो आपका जो वोल्टेज है वो 0 पे ड्रॉप हो जाएगा. ओके, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21. The difference between the electrode potentials of two electrodes when no current. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा when there is no current drawn? तो that will be the cell EMF, cell electromotive force. Now question number 22. Choose the correct option for the given cell Mg Mg2 plus. Mg Mg2 plus में बदल रहा है. ठीक है, कैसे जाएगा बेटा? बाई लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है. और कॉपर Cu2 प्लस कॉपर में बदल रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज कौन से उस पर होता है? इलेक्ट्रोड पे, एनोड पे. और ये आपका रेड्यूस हो रहा है, तो ये आपका कहाँ पे होता है बेटा? कैथोड पे. आप देख लो कौन सा आंसर सही है. Mg इज कैथोड, नो. कॉपर इज कैथोड, यस. रिडक्शन टेक प्लेस एट Mg इलेक्ट्रोड, नो. यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट कॉपर इलेक्ट्रोड, नो. यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23. An electrochemical cell can behave like electrolytic cell when.
सी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका होता है जब हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है इसके लिए बेटा? द रिएक्शन शुड बी स्पॉन्टेनियस, the delta G gives free energy should be negative for this. Okay, so now अगर हमें electro, and this is for which type of cell? That is for the electrochemical cell. Electrochemical cell, when the chemical energy is getting converted into electrical energy. Now the question is, यही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कब आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगा? ओके, तो यहाँ पे बेटा आप क्या कर सकते हो, सी कोई प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस, ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आपका क्या होता है कि वो रिएक्शन अपने आप हो रहा होता है, मतलब आपका जो रिएक्शन सेल का जो रिएक्शन है वो अपने आप हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ का अपना एक वोल्टेज होगा, अगर हमने कोई बाहर से कोई वोल्टेज दे दिया ई एक्सटर्नल, ठीक है, हमने कोई बाहर से एनर्जी लगाई, कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स दिया, तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन को पलट देते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवा लेते हैं, ठीक है। और ऐसे टाइम पे जब हम स्पॉन्टेनियस को नॉन स्पॉन्टेनियस कर देते हैं तो उसी समय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेटा किस में बदल जाता है? आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल जो आप बाहर से फोर्स लगा रहे हो वो आपका इट शुड बी मोर देन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, then only it will change from spontaneous to non-spontaneous, or you can say from electrochemical cell to electrolytic cell. So option number D will be the right answer. E external should be greater than E cell. Question number 24. Which of the following is not correct about the salt bridge? Salt bridge तीन करेक्ट है, एक करेक्ट नहीं। Salt bridge completes the inner cell circuit, अभी मैंने बताया था। A salt bridge maintains the electrical neutrality of the electrolytes. Yes, क्योंकि जो हमारे एक्स्ट्रा कैटायंस एनायंस हमारे रिलीज होते हैं उनको क्या करता है, ये न्यूट्रल करता है। सी इट कंटेन्स अ थिक पेस्ट ऑफ सुटेबल सॉल्ट, अगर का सोल्यूशन लेते हैं। अ सॉल्ट ब्रिज अलाउज ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये बिल्कुल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ये सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर, these are the answers. Question number 25. कैलकुलेट द EMF, ये एक न्यूमेरिकल मैं लेकर आई हूँ इस चैप्टर का, क्योंकि यहाँ से बेस्ड न्यूमेरिकल्स बेटा आपको आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल से सेल से, दैट इज बेस्ड ऑन नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आपको EMF निकालना है, ठीक है, यानी E सेल निकालना है। E सेल इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 divided by number of electrons, okay, log oxidation minus upon reduction, ठीक है। तो पहले ये क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा। सी ये एक मेटल है और ये ये इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है, ओके, रिएक्टिविटी सीरीज में, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी ऑक्सीडाइज्ड होने की, ओके। फिर इसको क्या होना पड़ेगा बेटा, रेड्यूस्ड होना पड़ेगा। क्लास 10th से आप पढ़ते चले आ रहे हो, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। Mg हैज मोर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड देन कॉपर, ठीक है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन Mg निकाल रहा है, कौन ले रहा है, दैट इज टेकन बाय कॉपर टू बिकम कॉपर, ठीक है। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे E नॉट सेल माइनस, अब बेटा E नॉट सेल निकालने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है दैट विच रिएक्शन इज हैपनिंग एट एनोड एंड विच रिएक्शन इज हैपनिंग एट कैथोड, ठीक है। एनोड पे कौन से टाइप का रिएक्शन होता है बेटा, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड कैथोड का मतलब क्या होता है बेटा, रिडक्शन, रेड कैट, कई बार मैंने बताया है, एनोड एनॉक्स, एंड ये क्या है बेटा आपका रेड कैट। कैथोड पे आपका क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, तो ये जानना आपका बहुत जरूरी। तो ई नॉट सेल आप तभी निकाल सकते हो ना। ई नॉट सेल आप कैसे निकालते हो? ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। और यहाँ पे आपका फिर बाकी लिख दोगे 0.059 बाई एन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 2 है। लॉग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बेटा? Mg का, तो यू विल राइट Mg 2 प्लस अपॉन रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर का, तो Cu 2 प्लस। ओके, सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस you will get the answer somewhere. See here in this slide I have written the solve numericals, so you can refer it. So ये आपका देखो हम लोग यहाँ पर थे, अगर हम इसे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ई नॉट कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है बेटा? मैंने बता दिया था, कॉपर हमारा कैथोड पे जाएगा, सो Cu2 प्लस टू Cu माइनस ई नॉट, ये हमारा एनोड पे जाएगा, Mg2 प्लस 2 Mg, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा आपका प्लस 0.34 वोल्ट माइनस इसका कितना दिया हुआ है? माइनस में दिया है 2.37 वोल्ट, ठीक है। सो व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस यू विल गेट 2.71 वोल्ट एंड व्हेन यू विल sorry, when you will keep the value of E naught cell here, number of electrons are 2 log, अब ये क्या बेटा? concentration, concentration of ऑक्सीडाइज्ड वन एंड रेड्यूस्ड वन। ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है आपका? Mg, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे 0.01, और रेड्यूस कौन हो रहा है आपका? कॉपर, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 0.001। व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट log 10, log 10 की वैल्यू आपकी होती है 1। सो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट E cell इज इक्वल टू 2.68 वोल्ट, ठीक है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर है बेटा। आपको यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। आपको ये ध्यान रखना है एक चीज, अगर बेटा आपका कॉपर, जिंक, सिल्वर, इनके साथ बेटा अगर आपको सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये अगर आपको दिखते हैं, ठीक है, तो आप ये याद रखना कि इनकी ही टेंडेंसी ज्यादा होती है ऑक्सीडाइज्ड होने की, ठीक है। और जिंक के केस में आप जानते ही हो, अगर जिंक एंड कॉपर है तो जिंक ऑक्सीडाइज्ड होगा, ठीक है। कॉपर एंड सिल्वर है तो कॉपर ऑक्सीडाइज्ड होगा। सो दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एंड एक बार जाते आते आप प्लीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लीजिएगा। इफ यू हैव, मैंने क्लास में निमोनिक भी शेयर किया हुआ है, तो अगर आपको इसका से बेस्ड निमोनिक भी याद है तो आप उनको याद करके जाइएगा कि किसकी टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज्ड होने की और किसकी टेंडेंसी है रेड्यूस होने की। Because when you are clear with this concept, then only you can calculate the E naught cell and you can put the value of this concentration of oxidized one and concentration of reduced one. So we are done with all 25 questions. I hope कि आपको ये chapter के maximum questions मिल गए हैं। There are actually ये chapter बहुत vast है, मैंने कुछ 25 क्वेश्चन वेराइटी यानी मिक्स किया है, तो इनको कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट आता है देन डू आस्क, ओके। एंड यस ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच। आपका हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क के साथ जाना चाहिए। आप PYQ जरूर सॉल्व करना, क्योंकि इफ यू विल नॉट सॉल्व द PYQs you won't be able to understand that which type of questions come from this concept, ठीक है। तो ये आपको PYQ हेल्प करता है कि इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से हमें क्या क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सो बी हैप्पी इन बोर्ड एग्जाम, टेक प्रॉपर स्लीप, बी काम एंड डोंट गेट पैनिक, ओके। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।